Okay, so let's start with today's lecture. We are going to start with something called as stack, and I'm sharing my screen. Okay, I hope you are able to see my screen. Yes, sir. Okay, so let's see Yes, sir. let's see what is a stack. Okay, so stack is an arrangement of data. You know, in data structure, we are going to talk about how you arrange data. Okay? And we are going to see different kinds of data arrangement. And these different kinds of data arrangement will differ on the way we are storing the data and the applications that particularly become convenient when the data is stored in this particular arrangement. So the first data structure and one of the easiest data structure that we are going to discuss is stack. Now what happens in stack? I would like to show you by example. Stack is a data structure in which we add and remove data. Please note it down. So we add and remove data elements. I should say data element because only from one end of a linear structure. Okay. Now there are two more terms coming here. What is a linear structure? Linear structure is something in which you can only add data one after the another. For example, look at this particular diagram. If I make like this, now this is a linear structure. Why linear structure? Because you know elements can be only one after the other. For example, I can have my first element say B. I can have B here. I can have C here. I can have D here, or I can have W at this point before B. I can have Z after D. I can have R before W. So this is a linear structure because elements can be only one after the other. On the other hand, look at this data structure B, and I have WCD below B, so WCD, and I have say A here. I have B and C, sorry, M and N below C, and I have R here. Now this one is not linear. Why this is not linear? Because you know there is no, relationships more than before or after, or I should say preceding or succeeding, because you can say that W appears after D in some sense, but what about the relationship between W and C? Okay, so this is a non-linear data structure. This is an example of a tree, and this is a non-linear data structure, whereas this type of arrangement in which elements can only appear one after the other is a linear data structure. So we have different types of data structures. Some of them are linear and some of them are non-linear. You can see the difference here. This one happens to be linear data structure. You can have different data structures in the linear category also, and this one, trees and graphs and other data structures, are non-linear. Okay, so stacks are linear data structures in which you can only add or remove data only from one end. Now what does that mean? That means that if you have a stack, okay, let's take a stack and let us restrict ourselves that we are going to add and remove from this end, okay, from the right end. So I will conceal this left end. So now you are only allowed to add data from this end. So आप नए data को इसी end से जोड़ सकते हैं stack में, and you are also allowed to remove data from this end. आप जो existing data है उसको अगर आपको हटाना है तो भी आप इसी end से हटाएंगे. So this end, ये वाला जो end है मैंने इसको conceal कर दिया है. This is like closed. Okay. Now, if I say add a data element, say A, you can only add this particular data structure but through this end. So if you add A, the only element contained inside that data structure stack will be A. Now, if I say go and now add B, and then after adding B, immediately add C. Okay, and these operations have to be in order. So B has to be added first and then C. So if I add B right now, since I am required to do everything from this end, and A is already inside,
So if I add B, then B will appear after A like this. And after this, if I add C, once again I will have to do C also from same end, that is from this end. So C will appear after B. So my elements are A, B, C. A was the first element to be added from this end, of course. After A, I was asked to add B. Once again, I can do only from this end. So B was added, and then somebody told me to add C. So now the current status of the data structure is A, then B, and then C. Now, this data structure is concealed, is closed from this end. Okay, I am not allowed to do anything from this end. The only end allowed is this one. Now somebody says me that now you remove one element. Now look at my language. Nobody will tell me what to remove. They will just tell me remove one element. Now, since I am only allowed to do the operation from this end, and if I go and see the element that I can remove, then the element that is nearest to the end from which the operations can be done is C. I cannot bypass element C and go and remove B, because this is a linear data structure. You will have to follow the order. The order is right now, the order is A, B, C. You cannot directly jump to any element. So the element C has to come out first. If you want to remove B, then you will actually have to remove C and then go to B. So if I just go and remove the element, then it will be C, it will be removed from the data structure. So C will come out. Okay, so the answer of this remove operation will be C will come out. And now your data structure will now contain only A and B in the same order that has been shown here. Okay, yeah. No. Okay, fine. Okay, I had only one pending request. इसको मैंने accept कर लिया. I think that will be okay. Okay, now if I add, if somebody tells me to remove another element, nobody can tell me which element to remove. याद रखिए, आप मुझे बस इतना बोल सकते हैं कि आपको रिमूव करना है. कौन से एलिमेंट को रिमूव करना है वो डिपेंड करेगा स्टैक के स्ट्रक्चर पे. जो एलिमेंट सबसे पहले सबसे क्लोज रहेगा वही एलिमेंट को मैं डिलीट कर पाऊंगा. Okay, now if I go and try to remove another element, then the next element to be removed, can you guess the next element to be removed? कौन सा एलिमेंट होगा जो रिमूव होगा? B. ठीक है. याद रखिए, you don't have a choice here. ठीक है. So I should make B at this point actually. C but B removable. Okay, I should make at this point. So the next element to be deleted, to be removed will be B, and I should now remove erase B from my data structure because B is no more contained inside the data structure. Now I have only one element left, that is A. Now if immediately somebody says me to add a new element, say B, if somebody asks me to add B and then add E. Now since the only end from which I can do the operation is this one, so I will now go and add D, and if I now add D in this data structure, okay, if I now go and add D in the data structure, D will be again placed at this point, and after that if I go and add E, then E will be added at this point. So this is how a stack works. Okay, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. पहली बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट एक के बाद एक आते हैं. ठीक है. सो जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम सब खड़े हो जाएं, जैसे हम स्कूल में लाइन में खड़े होते थे असेंबली के लिए, दैट इज लीनियर एलिमेंट. ओके, सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स एक के बाद एक आएंगे, और स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है, बट इन एडिशन टू दैट another एक और रिस्ट्रिक्शन स्टैक में ये है that you can only add and remove from one end of the linear structure. कोई भी एंड हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बट both the operations of addition and deletion will has to be from only one single end. मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला एंड लिया है, मैं यहाँ भी ले सकता था, उससे मेरे आंसर्स को फर्क नहीं पड़ेंगे. सो एलिमेंट को आपको अगर मैं ऐड करने बोलूं तो भी आप उसी एंड से करेंगे, और अगर मैं आपको एलिमेंट को रिमूव करने बोलूं, यू डोंट हैव ए चॉइस कि किसको रिमूव करना है. यू विल गो and remove the element that is closest to that particular end. Closest का मतलब है जो उस end से सबसे पहले remove करने के लिए accessible है, and that elements actually, अगर आप थोड़ा और सोचे तो that element भी the element जो सबसे last में add किया गया है. Okay? अगर यहाँ आप देखें, सबसे पहले मैंने A को add किया था, मैंने फिर B को add किया था, फिर मैंने C को add किया था. उसके बाद जब मैंने आपको remove करने के लिए बोला गया, तो automatically
आई थिंक आई मेड मिस्टेक हियर, ये वाला सी नहीं है, ये वाला बी है। ओके, सो अगर मैं सबसे पहले रिमूव करूं ए बी सी के बाद, तो सबसे पहला जो एलिमेंट रिमूव होगा वो एक्चुअली वो एलिमेंट है जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। ओके, सो लास्ट में जो एलिमेंट ऐड किया गया है वो सबसे पहले रिमूव होता है। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑल्सो से stacks as last in, can you complete this? Last in first, last in first, can you complete this? Last First in out. first out, ठीक है। And because of this we call stack as LIFO data structures. Please take a note of this word, LIFO, last in first out। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इन हुआ, जो सबसे लास्ट में अंदर आया, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। याद रखिए, आप मेरे को कभी ये नहीं पूछेंगे कि सर इस स्टैक में से मैं कौन सा एलिमेंट रिमूव करूं। ये क्वेश्चन अपने आप में एब्सट्रैक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज स्टैक में कौन सा आप रिमूव करेंगे वो चॉइस नहीं है। स्टैक में वही रिमूव होगा जो सबसे लास्ट में, इस वक्त सबसे लास्ट में आया है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, नाउ यहां तक क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस अप टू दिस पॉइंट? तो स्टैक को एक पाइप की तरह सोचिए, एक पाइप जिसमें उस पाइप का विड्थ इतना है या चौड़ाई इतनी है कि उस पाइप में एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल आ सकता है, दो बॉल एक साथ नहीं आ सकते पाइप में, ठीक है। और मान लीजिए मैं पाइप का एक एंड बंद कर देता हूं और दूसरा एंड ओपन रखता हूं, तो नेचुरली अगर आप रेड बॉल, ग्रीन बॉल, येलो बॉल, ऐसे अलग अलग कलर के बॉल डाल रहे हैं, तो सबसे लास्ट में जो बॉल आपने डाला है वही सबसे पहले निकलेगा। दिस इज लाइक अ स्टैक। एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नाउ जो ऐड ऑपरेशन होता है स्टैक का, this is actually termed as a push operation in computer science, और जो remove operation होता है, this is known as the pop operation. So please take a note of these words. हम आज के बाद add और remove नहीं बोलेंगे stack के context में these words are push and pop, not any kind of rule, not any kind of literature, but more or less convention बन गया ये। So nobody calls add or remove with stack, everybody will call it as push and pop. Okay. So एक एग्जांपल करके समझते हैं कि एग्जैक्टली पुश एंड पॉप क्या है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक स्टैक में आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टैक में देखिए, ऑपरेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एज ए प्रोग्रामर आप जो चाहें जिस तरह का कोड करें, बट जनरली जो स्टैंडर्ड स्टैक ऑपरेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं, या पूरा जो कम्युनिटी है, जो एकेडमिक कम्युनिटी है जिस पे वो एग्री करती है, वो है सबसे पहले पुश ऑपरेशन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश, ठीक है, ऐड एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन इज लाइक जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसको रिमूव करो। आपको कोई नहीं बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप कर रहा है, रिमूव द टॉप एलिमेंट, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट इज द टॉप एलिमेंट एक्चुअली, डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट द वर्ड टॉप। लेट मी टेल यू कि टॉप किसको बोल रहा हूं मैं। ये आपका स्टैक है, ठीक है। मैं इसको ऐसे पाइप बना रहा हूँ, ऐसा पाइप जो नीचे की तरफ बंद है। अगर मान लीजिए आपने पुश किया है ABC, तो सबसे नीचे A रहेगा। आपने उसके बाद पुश किया है B, तो उसके बाद B रहेगा, एंड उसके बाद C रहेगा। ये स्टेटस है स्टैक का। नाउ हम सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को, या सबसे लास्ट में जो एलिमेंट ऐड हुआ है, उसके इंडेक्स को हम टॉप इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स इन द सेंस एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एड्रेस। अगर आप एरे में काम कर रहे हैं तो इंडेक्स मतलब उसका जो स्लॉट नंबर है एरे का। अगर वो लिंक लिस्ट है, मैं अभी लिंक लिस्ट वाला ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट कुछ और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप स्टैक यूज कर सकते हैं। तो इन सम सेंस यू नीड टू मेंटेन कि जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है या उसका स्लॉट नंबर क्या है। ओके, सो जनरली हम उसको टॉप इंडेक्स बोलते हैं और उस एलिमेंट को हम टॉप एलिमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स टॉप रेफर्स टू दिस लोकेशन, दिस लोकेशन, ठीक है, सबसे टॉप एलिमेंट का एड्रेस। And the top element is actually the element at that particular index. Okay, so whenever I will say you to remove, you don't have a choice, you are required to remove the top element. That means अगर मैं इस वक्त आपको remove करने बोलूं, तो always it will be C that will be removed. Apart from push and pop, there are some other operations. Please take a note of this also, this is important. One operation is known as isFull operation. Now what is isFull? isFull operation checks whether the stack is full or not. So अगर आपका स्टैक इस वक्त फुल है, अब आप बोलेंगे सर ये फुल मतलब क्या है? देखिए, एवरी डेटा स्ट्रक्चर विल हैव समथिंग कॉल्ड एज कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर कितने एलिमेंट को एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है।
सो अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर में 5 या आपके स्टैक में 5 एलिमेंट एकोमोडेट किए जा सकते हैं और इस वक्त स्टैक में मैंने इतने पुश किए हुए हैं कि 5 एलिमेंट हैं स्टैक में, उस वक्त हम ये बोलते हैं कि स्टैक इज नाउ फुल इन द सेंस कि कैपेसिटी फुल है। ठीक है, आप एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं वो तो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, बट देयर इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एवरी कंटेनर। ठीक है, सो अगर कंटेनर में जितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं, अगर उतने एलिमेंट्स इस वक्त आ चुके हैं तो हम ये कहते हैं द डेटा स्ट्रक्चर इज फुल। तो ये जो इज फुल ऑपरेशन है, जब भी मैं बोलूंगा कि स्टैक के साथ इज फुल ऑपरेशन को वर्कआउट कीजिए, आप स्टैक के स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे, दैट मींस आप स्टैक के स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग, बट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द स्टैक कैपेसिटी इज फुल। और अगर कैपेसिटी फुल है तो आप इस ऑपरेशन के आउटपुट में मुझे ट्रू बताएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इस ऑपरेशन के आउटपुट में फॉल्स बोलेंगे। दैट मींस you will either say true or false depending upon whether the stack is full or not. हम इसको एग्जांपल से और समझेंगे, राइट? Now there is another operation called as isEmpty. I don't think we need to discuss this. ठीक है, isEmpty is full का उल्टा है। isEmpty return true करेगा if the stack is actually, if the stack contains no element. ठीक है, प्रेजेंटली अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका मतलब है स्टैक खाली है, तो isEmpty उस वक्त ट्रू ठहराया जाएगा। एंड अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट है या स्टैक फुल भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी एलिमेंट है या स्टैक पूरा फुल कैपेसिटी में है तो isEmpty मुझे बोलेगा कि नहीं, फॉल्स है, बिकॉज एम्प्टी नहीं। तो इज फुल बेसिकली हम पूछ रहे हैं क्या ये स्टैक फुल है, द आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स। isEmpty हम ये पूछते हैं क्या ये स्टैक खाली है इस वक्त, द आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स। There's another very important operation known as peek. Peek means get the top element but don't remove it. Now इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? Can you tell me? Get the top element but don't remove it from the stack. मतलब what is peek? अच्छा, बाय द वे पीक का मतलब जानते हैं? व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ पीकिंग? पीक का मतलब क्या होता है? द टॉप पॉइंट। द टॉप पॉइंट। नहीं, यू आर, आई थिंक आप PEA की बात कर रहे हैं ना शायद। यू आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन पीक, राइट? वो PEA के है ना शायद। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब पीक, पीकिंग। एनी आइडिया किसी को? सर हिंदी में उसको झांकना बोलते हैं, ताका झाकी करना बोलते हैं, झांकना। ठीक है, सो पीक का मतलब है आप इस पाइप में देखिए, आप यहां खड़े हैं, लुक एट दिस, आप यहां खड़े हुए हैं और ये स्टैक एक पाइप के जैसा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, आप यहां पे हैं। मैं अगर बोलूं कि झांक के देखो तो इस कुएं में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, तो आप यहां से पीक करेंगे तो आपको कौन सा एलिमेंट दिखाई देगा? अगर आप यहां से झांकते हैं तो हाँ, आपको टॉप एलिमेंट दिखाई देगा, एग्जैक्टली। तो आप मुझे बोलेंगे सर इस स्टैक में सबसे ऊपर मुझे C दिखाई दे रहा है, इस कुएं में सबसे ऊपर C है, C के नीचे क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो पीक इज लाइक गेटिंग, सीइंग द टॉप एलिमेंट, बट मैंने आपको रिमूव करना नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि देखो स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, देख के आओ बस। ठीक है, सो आप जब स्टैक के ऊपर एलिमेंट को देख पता करते हैं कि ऊपर क्या है, आप पता जरूर करते हैं बट यू डोंट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, दैट इज नोन एज पीकिंग। ठीक है, सो ये 5 ऑपरेशन है, हम इन 5 ऑपरेशन को यूज करके स्टैक में काम करते हैं। सो एनी डाउट टिल नाउ, और वी कैन गो फॉर एग्जांपल नाउ। Any doubts in the operations of stack? Push, pop, is full, is empty, peek. Any doubts? आगे बढ़े, एग्जांपल करें? Yes sir. Okay, so let's now go and do an example. Okay, देखिए, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। So I have a stack of 4 elements. ठीक है, so मतलब मेरा जो कैपेसिटी है स्टैक का वो कितना है? कैपेसिटी इज 4, आई कैन ओनली स्टोर 4 एलिमेंट्स एट ए टाइम, राइट? नाउ मैं आपको ये बता दूंगा कि इनिशियल कंडीशन क्या है, यानी इनिशियली टॉप कहाँ पे है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, और आप मुझे बताएंगे कि आपके स्टैक का पोजीशन क्या है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको पहले ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन का आउटपुट खुद दिखा देता हूँ।
तो उसके बाद आपको कंप्लीट करना है, राइट? रेडी? चलिए मान लीजिए मेरा पहला ऑपरेशन जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बाय द वे लेट मी टेल यू द इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन हमेशा सेम रहेगा स्टैक में। नोट कर लीजिए इनिशियल कंडीशन क्या है। द इनिशियल कंडीशन जो होता है, प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स, इसलिए आपके लिए टाइप कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ टाइप करें। इनिशियल कंडीशन में हमेशा याद रखिए जो टॉप होता है वो उसको हम रख रहे हैं -1 में। नाउ यहाँ पे वी कैन हैव अ डिस्कशन, टॉप को -1 में मैंने क्यों रखा, 0 पे क्यों नहीं रखा, या किसी और पे। तो यहाँ देखिए इसका रीजन क्या है। मेरा जो स्टैक है वो मैं यूज कर रहा हूँ उसको एरे में, ठीक है? सो आई एम यूजिंग एन एरे टू स्टोर स्टैक। इसको मान लीजिए ये एरे है, मैं इसको डायग्राम में जरूर दिखा रहा हूँ आपको एज ए पाइप, बट एक्चुअली प्रोग्राम में मैं इसको एरे यूज करूंगा। नाउ अगर ये एरे है और इसमें 4 एलिमेंट आ सकते हैं, तो ये डायग्राम आई थिंक मैंने सही बनाया है, ठीक है? ये 4 एलिमेंट का मैंने एरे बनाया है। नाउ एरे के एलिमेंट्स को मैं इंडेक्स करता हूं, तो फर्स्ट इंडेक्स विल बी 0, देन आई विल हैव 1, देन आई विल हैव 2, and then I will have 3. These are the indexes of the 4 elements of the array, right? Indices, right? Okay, now top को मैं टॉप का टारगेट ये होता है कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट इस वक्त आपके स्टैक में आया है आप उसको पॉइंट करें। तो देखिए इस वक्त मेरा स्टैक खाली है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और वर्ड ऐड करना चाहिए, ठीक है? आई थिंक आई शुड ऐड हियर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है? इनिशियल कंडीशन में हमारा स्टैक खाली है, ठीक है? तो अगर स्टैक खाली है तो मैं टॉप को कहां रख सकता हूं? टॉप को मैं 0, 1, 2 या 3 पे रखूंगा तो वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 इज अ वैलिड लोकेशन इन माय एरे। तो मैं टॉप को यहां रखूंगा तो उसका मतलब आप सोचेंगे कि एक एलिमेंट है आपके पास, वो एलिमेंट कहां पे है? 0 पे। तो द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन कीप द टॉप एट -1। -1 इसलिए सेफ है कि -1 इंडेक्स एरे में वैलिड ही नहीं है, मेरा एरे तो चालू ही होता है 0 से। तो टॉप -1 पे रख के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो अभी मेरा स्टैक खाली है, ठीक है? सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। एरे में जब आप इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक को, और हम करेंगे भी इसको लैब में, इनफैक्ट कल ही करेंगे, अभी आज ही करेंगे, टॉप अगर -1 पे है तो ये डिनोट करता है कि स्टैक खाली है, क्योंकि स्टैक में जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 पे होगा, एंड 0 इज डेफिनेटली डिफरेंस फ्रॉम -1, राइट? Any issues in this कि हम टॉप को -1 पे क्यों रख रहे हैं? टॉप -1 ये बताता है स्टैक एम्प्टी है। नाउ मेरे ऑपरेशंस नोट करते हैं। सो इफ आई आस्क यू टू डू द ऑपरेशन, मैं ग्रीन से शुरू आपको बता रहा हूं। सो द माय फर्स्ट ऑपरेशन इज, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि ड्रॉ द स्टैक आफ्टर द ऑपरेशन पुश लाइक D। तो जैसे ही मैं आपको बोलूंगा पुश D, आपको ये डायग्राम बनाना है ये बताने के लिए कि स्टैक का स्टेटस क्या है। सो आफ्टर पुश T आपका स्टैक कुछ ऐसा बनेगा। कैन यू टेल मी ये स्टैक कैसा बनेगा? 4 एलिमेंट, तो 4 सेक्शन तो है मेरे पास। माय स्टैक कैन अकोमोडेट 4 एलिमेंट्स, तो मैं उसको दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है? ये मेरा स्टैक है, मतलब ये मेरा स्टैक का कंटेनर है। कैन यू टेल मी D कहां पे आएगा? सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे या 0 में, D आएगा 0 में, ठीक है? और टॉप कहां पे रहेगा इस पर? कैन यू टेल मी टॉप कहां पे रहेगा? 0। ओके, टॉप पॉइंट करेगा टॉप एलिमेंट को, और टॉप एलिमेंट 0 पे है, दैट मींस टॉप को मैं डिनोट करूंगा लाइक दिस, ठीक है? ये मेरा पहला ऑपरेशन हो गया। आई होप कि आप नोट कर रहे हैं इसको। अब इमीडिएटली इसके बाद मैं आपको दूसरा ऑपरेशन दे रहा हूं, सो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं। आई एम इरेजिंग दिस वन। अब मैं आपको अगर ऑपरेशन दूं इज एम्प्टी को कॉल कीजिए इस वक्त। अगर मैं इस वक्त आपको बोलूं कॉल इज एम्प्टी, तो मुझे बताइए इज एम्प्टी और इज फुल का काम क्या होता है? रिटर्न करना ट्रू या फॉल्स। सो कैन यू टेल मी, अगर मैं सेकंड ऑपरेशन में इज एम्प्टी को कॉल करूं तो क्या वो ट्रू दिखाएगा कि फॉल्स दिखाएगा? व्हाट इज आउटपुट? फॉल्स। फॉल्स बिकॉज ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आउटपुट, आप नोट करते जाइए इसको, फिर आपको एग्जांपल करना है। मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इज एम्प्टी, so the output will be false because stack is not empty. Yeah, I should say stack is no more empty. ठीक है, थोड़ी देर पहले empty था। Now the next operation is, please take a note. I am calling push x, push y, push z, 3 operation and maintaining the order. So it's 3 different operation मैंने एक साथ लिखा है। So can you quickly tell me इन तीनों के बाद मेरा स्टैक कैसा मुझे बनाना चाहिए?
स्टैक कैसे दिखेगा इसके बाद? या हेल्प मी आउट क्विकली. द स्टैक विल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स? So 4. 4 elements. Okay, okay. एक second wait कीजिए. So I have made 4 slots. Please ignore my poor sketching because of this rough surface here. Okay. So the indexes are 0, 1, 2, 3 of course, and the elements are सबसे नीचे D आया था सबसे पहले. After D we pushed X. After pushing X we pushed Y, and after pushing Y we were asked to push Z. And can you tell me what is the position of top pointer? Top pointer. three. Z. Exactly. Top is at actually 3. आप उसको 3 भी बोल सकते हैं, आप उसको Z भी बोल सकते हैं, because top का काम है सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट एलिमेंट को पॉइंट करना. तो एलिमेंट को पॉइंट करना मतलब एक्चुअली एलिमेंट के अंदर घुस के तो पॉइंट नहीं करता, वो इंडेक्स को पॉइंट करता है और इंडेक्स में एलिमेंट होता है, राइट? तो टॉप इज पॉइंटिंग टू Z भी बोल सकते हैं आप, टॉप इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स 3 भी बोल सकते हैं. बोथ द लैंग्वेजेस आर करेक्ट. नाउ अगला ऑपरेशन जो आपको मैं अभी करने बोल रहा हूं, इफ आई आस्क यू टू डू द ऑपरेशन इज फुल, कैन यू टेल मी इस वक्त इज फुल का आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं आपको अभी True. या एग्जैक्टली अगर आपको अभी बोलूं इज फुल, देन द आउटपुट ऑफ इज फुल विल बी ट्रू. ठीक है. सो इज फुल एंड इज false, they don't do anything with the stack, they just return the boolean values true or false depending upon the stack condition. Now I hope आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे रन करना है ये कोड. मैं आपको दो एग्जांपल. आर वी क्लियर विद द एग्जांपल? कैन वी डू दिस नाउ? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आपको करना ये है कि मैं आपको स्टैक का साइज बता दे रहा हूं, मैं आपको स्टैक का कंडीशन बता दे रहा हूं. नोट कीजिए, स्टैक साइज इज इक्वल टू 3 एलिमेंट आ सकते हैं. साइज का मतलब है उसकी कैपेसिटी. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. साइज का मतलब उसकी कैपेसिटी. इनिशियल कंडीशन नोट कीजिए. इनिशियल कंडीशन है स्टैक इज एम्प्टी, और आप भी जानते हैं स्टैक इज एम्प्टी का मतलब क्या है. टॉप कहां पे, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये इम्प्लिसिट है. एम्प्टी स्टैक को हम कैसे डिनोट करते हैं, नोबडी विल टेल यू. ठीक है, आप जानते हैं कि टॉप कहां पे होना चाहिए. नाउ आई विल जस्ट गिव यू द ऑपरेशंस, और आपको अपने स्टैक के डायग्राम को बनाते रहना है साथ साथ. ठीक है. मेक 2 कॉलम्स, एक कॉलम में ऑपरेशन बनाएंगे और एक कॉलम में स्टैक का फिगर बनाएंगे आप. ठीक है, रेडी? ओके. सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज एम्प्टी कॉल. ये फंक्शन कॉल होगा, तो मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं. यू राइट डाउन द आउटपुट हियर इन योर कॉपी. आप चाहें तो डायग्राम भी दिखा सकते हैं कि स्टैक कैसा दिख रहा है इज एम्प्टी कॉल के बाद. आई होप यू आर डन. आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन पॉप. ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पॉप? अच्छा, बाय द वे मैं पुराना आउटपुट बताना भूल ही गया. लास्ट वाले इज एम्प्टी का आउटपुट तो मैं बताया नहीं आपको. व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ दिस इज एम्प्टी? True. Yeah, exactly. Is empty का इसका आउटपुट आएगा true because क्योंकि stack actually खाली है. Okay. Now, can you tell me the output of this pop? Stack खाली है. मैंने pop ऑपरेशन कॉल किया, आप मुझे रोक नहीं सकते. ऑपरेशन आपने मुझे बता दिया, मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ कॉल करूँ. तो अगर मैं pop को कॉल करता हूँ खाली stack में, आप क्या रिटर्न करेंगे? ABC आप रिटर्न कर नहीं सकते, वो तो गार्बेज है. तो हम क्या करते हैं, प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस. जब स्टैक खाली होता है, अगर आप प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आप कुछ भी रैंडमली रिटर्न करें, तो जो एप्लीकेशन इसको कॉल कर रहा है इस फंक्शन को, वो एप्लीकेशन कैसे इस बात को समझेगा कि ये स्टैक का लीगल जेन्युइन डेटा है, लेजिटिमेट डेटा है, या फिर ये गार्बेज है. इसलिए एक प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं जनरली. जैसे बाइनरी सर्च में आपको याद होगा, हम जब एलिमेंट मिल ही रहा था तो -1 रिटर्न कर रहे थे. वैसे जनरली हम एक नंबर ले लेते हैं या एक फ्लैग वैल्यू ले लेते हैं बताने के लिए कि देखो ये वैल्यू हम आपको तब रिटर्न करेंगे जब स्टैक खाली होगा. जनरली अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज में काम कर रहे हैं, दैट नंबर इज -1. आप 0 भी ले सकते हैं, इंटायरली डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे. बट unless and until specified, we take -1 as a value to represent the fact that this is a sort of a failure operation, the output of a failure operation. ठीक है. तो पॉप अगर मैं आपको करने बोलूं और आपके पास एलिमेंट नहीं है पॉप करने के लिए,
The only thing is that you can give me some predefined value indicating the failure of pop. अब आप बोलेंगे सर इसमें गलती किसकी है? जिसने पॉप को कॉल किया उसकी गलती है या मैं -1 रिटर्न कर रही हूँ मेरा गलती है? तो देखिए गलती एक्चुअली मेरी है जिसने कॉल किया, इसलिए गलती यहाँ है। पॉप करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए था बताइए? मेरे पास और कौन सा ऑप्शन था ये पता करने के लिए कि ये पॉप मुझे यहाँ पे इस वक्त करना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कर सकता था पॉप करने से पहले? पुश नहीं, पुश तो मैं कर सकता था, दैट्स फाइन, लेकिन देखिए पुश तो डेटा आएगा तब मैं करूंगा ना, मेरे पास डेटा है। या पीक भी कर सकता था, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बट एक और बहुत इजी सा ऑपरेशन है, इज एम्प्टी। मुझे चेक करना चाहिए स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो मुझे पुश पॉप करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए था मुझे, इफ इज एम्प्टी, अगर इज एम्प्टी ट्रू है, अगर इज एम्प्टी ट्रू है तो मतलब क्या है बताइए? मतलब क्या है? स्टैक खाली है, ठीक है? तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, एल्स मुझे पॉप को कॉल करना चाहिए, राइट? ये ज्यादा बेटर एल्गोरिथम होता, यस और नो? Yes, sir. अगर स्टैक खाली है तो मुझे पॉप नहीं करना है, मुझे तो आपने एक ऑप्शन दिया है स्टैक खाली है कि नहीं चेक करने के लिए, ये ऑप्शन है ना मेरे पास। तो मैं अगर बिना इज एम्प्टी चेक करके डायरेक्टली पॉप कर रहा हूं तो गलती मेरी है, लेकिन आप क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने ये सब नहीं किया, मैंने डायरेक्टली पॉप कॉल कर दिया, तो पॉप कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं हम, याद रखिए जब हम लैब में प्रोग्राम करेंगे हम पॉप को ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि भाई कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, पॉप का काम रिटर्न करना। स्टैक में डेटा है नहीं, गार्बेज रिटर्न करना अच्छी बात होती नहीं है, गार्बेज इज अनप्रेडिक्टेबल, तो हम एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट करके रखते हैं रिटर्न करने के लिए। जनरली जब हम न्यूमेरिक डेटा पे काम करते हैं, दैट प्री डिफाइंड वैल्यू इज -1 जनरली, नॉट ए रूल, not any kind of standard documentation, is just a convention, just a convention developed by programmers all over the world, ठीक है? So -1 is sort of a value reflecting the output of a failure operation. Okay, now अब मैं आपको ऑपरेशन बताऊं एक, let's try out the operation। अब मैं आपको कह रहा legitimate operation बता रहा हूं। So my operation is push 100, push 200. Okay, can you quickly draw the stack after these two operations combinedly? आप एक ही stack बनाइए, you draw the stack after push 200. Done? Yes, sir. Okay, now quickly give me the output of pop. Can you give me the output of pop now? 200. 200. Okay, fine. Now my next operations are push 300, push 400. Can you tell me? यहां तक आपने कर लिया कि नहीं? पुश 400 तक कर लीजिए, कैपेसिटी 3 है। डन? Yes, sir. ओके, नाउ अब ध्यान से सुनिए। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, इफ आई आस्क यू टू डू द नेक्स्ट ऑपरेशन एज पुश 500, आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताइए? I ask you to do push 500. Sir, stack full है. stack is Stack full full. Yeah, exactly. Stack is full. ऐसे केस में एक बार मुझे बताइए किसकी गलती है? मेरी जो आपको पुश करने बोल रहा है या आपकी? सर हमारी है। क्यों? सर क्योंकि हमने जब स्पेसिफाई कर दिया कि स्टैक का साइज 3 है तो हम जबरदस्ती उसमें 3 से ज्यादा एलिमेंट्स पुश करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो पुश करने मैंने बोला है तो गलती तो मेरी हुई ना, ठीक है? राइट? तो मुझे इस पुश ऑपरेशन को आपको देने से पहले क्या करना चाहिए था? सर इस कोई full भी वाला टॉप operation के एलिमेंट को सर पॉप condition करा देना लगानी चाहिए। हाँ, या तो मैं पॉप कर सकता हूँ या फिर मुझे चेक करना चाहिए इफ इज फुल। अगर स्टैक फुल है, अगर मान लीजिए ये ट्रू है, मतलब अगर इज फुल ट्रू बता रहा है तो मुझे पुश नहीं करना चाहिए था, एल्स मुझे पुश करना चाहिए था, राइट? ये मेरी गलती है ना, मैंने चेक नहीं किया, राइट? Yes, यस sir. सर। ओके, ये बिल्कुल वही है जैसे अभी पॉप किए थे -1 के लिए। अब सुनिए ध्यान से, जब आप पॉप कर रहे थे -1 के लिए तो ये तो आप सिग्निफाई कर रहे थे, आपके पास एक -1 नंबर आपने बना लिया,
तो जनरली हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को एक स्पेशल नाम देते हैं एंड वी कॉल दिस कंडीशन, इसको ध्यान से सुनिएगा, एज अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन ये बताता है कि देखो स्टैक में डेटा नहीं है फिर भी पॉप ऑपरेशन कॉल किया गया है, ठीक है। अंडरफ्लो मतलब स्टैक में डेटा नहीं है बट देयर इज अ पॉप ऑपरेशन कमिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको -1 देके बता रहे हैं कि देखिए ये डेटा नहीं है, ये फेलियर है, ठीक है, तो फेलियर ऑपरेशन का वैल्यू है। सिमिलरली जब स्टैक जब फुल होता है, स्टैक जब फुल होता है, इस वक्त आपका जो कंडीशन है स्टैक का वो ये है, आपके पास ऑलरेडी 3 एलिमेंट है, आपके पास है 100 सबसे नीचे, आपके पास उसके बाद 300 है क्योंकि 200 तो आपने पॉप कर लिया था, यहाँ पे 300 है एंड यू हैव 400। आपका स्टैक फुल हो चुका है, यू डोंट हैव एनी स्पेस, ठीक है। प्लीज इसको डायग्राम को मैं थोड़ा इन स्केल नहीं बनाया, ये आपका स्टैक है और मैं कह रहा हूँ 500 को पुश करो, पर आप कह रहे हैं सर जगह नहीं है मेरे पास, मैं कैपेसिटी भर चुका है मेरा, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज, कैन यू गेस द नेम? Can you guess this? Overflow. Yeah, very good. So please take a note of this. This is known as a stack overflow condition. ठीक है. Now, please इस बात को ध्यान दीजिए. Overflow में we cannot add the new element. 500 कभी ऐड नहीं होने वाला है. तो overflow तब नहीं बोलते जब 400 को आप ऐड करते हैं. जब तक कैपेसिटी भर रहा है तब तक आप कुछ नहीं बोलते. लेकिन जब आप किसी पुश ऑपरेशन को रिजेक्ट करते हैं, जैसे इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, आप बोलेंगे मैं 500 को नहीं ऐड कर सकता, आई डोंट हैव स्पेस। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी बैड थिंग इन कंप्यूटर साइंस। जब आप एक आते हुए डेटा को मना करते हैं, बेसिकली वी आर लूजिंग सम डेटा। हो सकता है किसी और एप्लीकेशन से डेटा आ रहा हो, उस एप्लीकेशन ने 500 को भेजा एक नेटवर्क चैनल पे और आप कह रहे हैं मेरे पास मेमोरी शॉर्ट है, आई कैन नॉट स्टोर दिस डेटा। सो दिस इज अ बैड कंडीशन इन कंप्यूटर साइंस। हम इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, राइट? यस, नो? Yes, sir. Okay. Yes. Now continuing the same example. अभी तक हमने खत्म नहीं किया. Please carry on. Now if I ask you to do 2 immediate pops, can you give me the values of these 2 pops? क्या रिटर्न करेंगे ये दोनों पॉप? पहला पॉप क्या रिटर्न करेगा आप? 400. 400. Okay, first pop will be 400 and the second pop will be 300. 300. Okay, excellent. Okay, यहाँ तक बना लीजिए पहले. Please continue the example. यहाँ तक कर लीजिए. Now, at this point, I am asking you to do a peak operation. Can you give me the output of peak? 100. 100. 100. This is actually the top element in the stack. You are not supposed to remove the element. आप element को नहीं हटाएंगे. Element अपनी जगह रहेगा. आप बस देखेंगे ऊपर क्या है. Now, if I ask you to immediately perform push 600 and then a pop operation, can you give me the output of this pop now? 600. हाँ, very good. This is not 100. This is 600. आइए देखते हैं कैसे. ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था, जब लास्ट पेज से हम यहाँ पे वापस आए थे, लास्ट स्लाइड से जब कैरी ऑन करके आए थे, तो वी हैड 100 एट द बॉटम, 200 पॉप होके निकल गया था, वी हैड 300 और वी हैड 400 ऑल्सो. हमने 500 को रिजेक्ट कर दिया था. 500 नेवर बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर स्टैक. सॉरी, 500 वाज रिजेक्टेड. हमने 500 को ऐड नहीं कर पाए थे हम, बिकॉज वी हैड अंडरफ्लो. ठीक है, अब मैंने आपको बोला पॉप करो, सॉरी मैंने बोला एक पॉप करो, एक और पॉप करो. सो अगर आप इमीडिएटली 2 पॉप करते हैं, पहला पॉप 400 को निकालेगा एंड दूसरा पॉप 300 को निकालेगा. यू विल बी लेफ्ट ओनली विथ 100. सो आफ्टर दीज 2 पॉप ऑपरेशंस यू आर विद दिस लोकेशन. ठीक है, और टॉप पॉइंट कर रहा होगा इस वक्त इंडेक्स नंबर 0 को, और आई कैन सेट एलिमेंट नंबर 100 को, एलिमेंट 100. अब मैंने आपको बोला पीक ऑपरेशन कीजिए. पीक ऑपरेशन कुछ स्टैक को चेंज नहीं करेगा, स्टैक एज इट इज रहेगा. पीक का काम होता है झांकना कि स्टैक में सबसे ऊपर क्या है. जैसे आप किसी कुएं में झांक के देखते हैं कि पानी कितना गहरा है, सबसे मतलब पानी का लेवल क्या है, वैसे आप झांक के देखते हैं कि टॉप एलिमेंट कौन सा है. फिर मैंने बोला पुश करो 600. जैसे ही आप इस पे 600 पुश करेंगे, द 600 विल कम एंड सिट ओवर द 100. याद रखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट. 600 ऊपर आके बैठ जाएगा. एंड देन आई आस्क्ड यू टू डू अ पॉप ऑपरेशन.
पॉप ऑपरेशन स्टैक में आप लास्ट इन फर्स्ट आउट में काम करते हैं। सबसे पहले सबसे लास्ट में 600 आया है, तो सबसे पहले जब निकालने की बात आएगी तो 600 निकलेगा। सो द आउटपुट ऑफ दिस विल बी 600। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Okay, now let's see the applications of stack. Let's see the applications of stack. Note करके रखिए इसको। The applications of stack are ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पे आपको एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में आपने स्टोर किया है उसके उल्टे ऑर्डर में निकालने की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है फंक्शन कॉल स्टैक। We will discuss this in detail, don't worry. ठीक है, हम इसका एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज undo operations. Okay, what is the undo operations? Have you heard about undo operation in Microsoft Word? Control Z. कुछ याद कीजिए, Control Z. Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है ये undo operation? सर लास्ट वाले चेंज को डिलीट कर दें। या तो अगर आप 10-12 ऑपरेशंस करें और उसको अंडू करें तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो समहाउ नोट करके रखता है कि आपने जो लास्ट के ऑपरेशंस किए हैं वो किस ऑर्डर में किए हैं, वो उसके उल्टे ऑर्डर में अंडू करता है। दिस इज डन इन स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हम लोग उस पर डिटेल में काम करेंगे। एक्सप्रेशन कन्वर्जन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एल्गोरिथम करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ट्रैवर्सिंग ऑफ ट्रीज, या इसको और अच्छा होगा ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स लिखिए। ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स ऑफ ट्रीज। ट्री को जब ट्रैवर्स करते हैं तो हम स्टैक यूज करेंगे। ये हम करेंगे 2 या 3 क्लास के बाद। ठीक है, सो ये बहुत सारे और एग्जांपल है। अच्छा, एक और मैचिंग ऑफ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस, ब्रेसेस एक्सेट्रा। इन कोड। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स में हम डिटेल में जाने वाले हैं। एक्चुअली हम करने वाले हैं इसको। ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स का तो हम पूरा एल्गो पढ़ेंगे। मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस का मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ओके, इसको नोट कर लीजिए और ये नेट पे मिलेगा भी और मैं आपको नोट भी शेयर करूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन 1 and 2। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन मैचिंग एंड लेट्स फोकस ऑन फंक्शन कॉल स्टैक। ओके, जरा इस एग्जांपल को देखिए जो मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट को सिखाया कि देखिए आपको अगर ब्रेसेस स्टार्ट करना है कोड में तो कोड लिखने के बाद ब्रेसेस को क्लोज भी करना है। ठीक है, ये मैंने उसको सिखाया। तो स्टूडेंट ने इस बात का नोट लिया कि हर ब्रेसेस ओपनिंग का क्लोजिंग ब्रेस भी होना चाहिए। नाउ व्हाट द स्टूडेंट एक्चुअली डिड इज उसने एक कोड बनाया जिसमें ब्रेसेस इस सीक्वेंस में। आप मुझे बताइए उस स्टूडेंट ने सही बनाया कि नहीं। उसने एक ब्रेस ओपन किया, एक ब्रेस क्लोज किया, एक ब्रेस क्लोज किया और फिर एक ब्रेस ओपन किया। अब उसका कंपाइलर उसको एरर दे रहा है। ठीक है, कंपाइलर कह रहा है एरर, बट स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये कोड ठीक है बिकॉज जितने ओपनिंग ब्रेसेस हैं उतना ही क्लोजिंग ब्रेसेस हैं। मुझे बताइए गलती किसकी है? 2 ओपनिंग ब्रेसेस हैं, 2 क्लोजिंग ब्रेसेस हैं। क्या कंपाइलर को यहाँ पे एरर देना चाहिए? एवरीथिंग इज फाइन, राइट? नो सर। हाँ, तो कैसे पता चला आपको कि ये गलत है? सर जैसे ओपनिंग जब होगा तो उसको, सर जैसे क्लोजिंग यहाँ पे 2 है पहले, उसके बाद जैसे एक ओपनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे 2 क्लोजिंग है तो उस साइड तो एक ही ओपनिंग है बट अपोजिट में। तो ओके, वेरी गुड। सो कैन यू क्विकली टेल मी? ओके, सो लुक एट दिस। ये मैंने एक IIT दिल्ली की एक साइट से लिया है, मतलब एक PPT से लिया है। कैन यू क्विकली टेल मी इनमें से कुछ गलत है कुछ सही है? लिखे भी हो कौन सा गलत है कौन सा सही है। हैव अ लुक एट दिस। सो लेट मी शेयर दिस विद यू। ओके, आई एम शेयरिंग दिस इन योर ग्रुप। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है ना? इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? द फॉन्ट इज विजिबल? ओके, यस सर। सो कैन यू टेल मी इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये आप कैसे पता कर सकते हैं?
सर जितने क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आएंगे मिनिमम उतने जितने ओपनिंग ब्रैकेट पहले आएंगे मिनिमम उतने क्लोजिंग ब्रैकेट राइट में होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ मिनिमम, अगर मैं उससे ज्यादा उससे कम कर दूं तो? सर उससे कम करेंगे उसके ओके बाद तो उसके बाद ओके भी होने चाहिए ना, अब क्योंकि पहले कंडीशन लगा रहे हैं कि इक्वल होंगे ही। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। कैन यू गिव मी सम एल्गोरिथम फॉर दिस? क्या आप में से कोई मुझे कोई एल्गोरिथम बता सकता है? अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे दूं और मैं बोलूं कि चलो बताओ, कैन यू गिव मी एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड दिस? सर एक रूल स्टैक बताओ की कि मदद गिव। सर हाँ एग्जैक्टली, आप स्टैक लगेगा आपको, या करेक्ट, हमको स्टैक की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास एक एम्प्टी स्टैक है, साइज की चिंता मत कीजिए, कैपेसिटी अनलिमिटेड है। बताइए मैं क्या करूं कि पता चल जाए कि एक्सप्रेशन सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ दिस। चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, गलत गलत वाला लेते हैं। 1 2 3, ये गलत वाला ले रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नाउ दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपको भी पता है कि ये गलत है, मैं पूरा बना भी नहीं रहा, ये गलत है। यू एग्री ये गलत है? यस सर। मुझे बताइए, मेरे पास एक स्टैक है और एक एक्सप्रेशन है, मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूँ एक्सप्रेशन को, आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये मेरा स्टैक है। और याद रखिएगा, आई रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या करूं मैं, गिव मी सम रूल, ये पता चल जाए कि एक्सप्रेशन वैलिड है कि इनवैलिड है। सर अगर ओपनिंग आ रहा है तो उसको स्टैक में डाल देते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक अगर सेकंड एक सेकंड, आपने क्या बोला? अगर ओपनिंग आया तो स्टैक में डाल देते हैं, तो ये आया यस तो सर। स्टैक में डाल दिया, ओके, इसको डाल दिया। अब क्या करूं? सर दूसरा आ रहा है उसको भी डाल दीजिए। डाल दिया डाल दिया, ये इसको डाल तीसरे दिया, इसको डाल दिया। अब क्या करूं? तीसरे को भी डाल दीजिए सर। इसको भी डाल दिया, अब क्या करूं? सर अब ओपनिंग सर आया है पॉप तो हम पॉप करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग आया तो पॉप करेंगे, तो मैं यस। स्टैक से पॉप कर रहा हूं, तो मैंने इसको उड़ा दिया, ठीक है, मैंने इसको उड़ा दिया। अब क्या करूं? तो सर अब आगे चले जाएंगे, आगे वाले को अंदर डालेंगे। अच्छा, इसको डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूं? उसके नेक्स्ट वाले को भी डालेंगे। ठीक है, इसको भी डाल दिया। अब क्या करूं? सर अब पॉप करेंगे क्योंकि क्लोजिंग आया है। दो दो क्लोजिंग आया तो मैं दो पॉप किया, तो मैंने दो पॉप यस। कर दिया। अब मेरा एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ठीक हाँ है। लेकिन सर अब स्टैक लेकिन एम्प्टी नहीं है, अगर सही होता तो अच्छा, स्टैक एम्प्टी हो गया रहता। ओके, नाउ दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो आपका कहना ये है, ओपनिंग ब्रेसेस को स्टैक में पुश करो, क्लोजिंग ब्रेसेस मिलते ही स्टैक से पॉप करो। जब आपका इनपुट खत्म हो रहा है यहाँ पे, जब आपका इनपुट खत्म हो रहा है, अगर उस वक्त स्टैक भी खाली है, तो ये मैच हो रहा है। हाँ डू यू और एग्री सर ऑल ऑफ यू? बीच में हाँ सर अगर बीच में क्लोजिंग आया है और तब भी अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तब भी गलत हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, आपने जस्ट बोलने से पहले बोल दिया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि इस एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, ठीक है। ये तो आप ही जानते हैं गलत है, तो आपके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली मैं इसको चेक ही नहीं कर पाता, क्योंकि आपने मुझे बोला ओपनिंग आने पे डालना है और क्लोजिंग आने पे पॉप करना है। इसमें देखिए, पहला ही एक्सप्रेशन, मैं पॉप करने जाऊंगा, इनवैलिड एंट्री आएगी, -1 आएगी, ठीक है। फिर मैं पॉप करूंगा पॉप करूंगा पॉप करूंगा, टेक्निकली जब मेरा एक्सप्रेशन खत्म होगा तब मेरा स्टैक भी खाली रहेगा एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आप ही जानते हैं कि गलत है। तो एक बार जरा फॉर्मलाइज कर दीजिए मेरे रूल को। कैन एनी ऑफ यू जस्ट फॉर्मलाइज द एल्गोरिथम? लेफ्ट टू सर राइट अगर स्कैन, हाँ, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, और क्या मिले पे क्या करना है बताइए। सर ओपनिंग में पुश करना है, ओके, ओपनिंग में पुश करना है, क्लोजिंग ओके में चेक करना है कि है, अगर है तो पॉप करेंगे, नहीं है तो रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, एक सेकंड, लेफ्ट टू राइट स्कैन, ओके। ओपनिंग, अगर मुझे लेफ्ट ब्रेसेस मिलता है तो मुझे उसको पुश करना है, फाइन। राइट ब्रेसेस मिलने पे क्या करना है? पहले चेक करना है कि है या चेक, इफ ओके नॉट एम्प्टी। ओके, वेरी गुड। इफ नॉट इज एम्प्टी, ओके फाइन। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है? पॉप, पॉप करना है। और अगर एम्प्टी है तो एल्स, एम्प्टी है रिटर्न तो 0। रिटर्न 0 मतलब क्या? किस बात का 0 सर पता है फॉल्स, फॉल्स। फर्स्ट मतलब क्या? आप इनवैलिड कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन इनवैलिड है, राइट? हाँ यस सर। ओके ओके ओके, इनवैलिड एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, या। और और मुझे सर आगे बताइए। लास्ट में देखना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। Okay, when the input expression is terminated, when the input expression is finished, ठीक है, in this list, the stack should be empty, right? The stack should be empty. Okay, तो मैंने ये, इसको एल्गोरिथम तो मैं बोल नहीं सकता, मेरा बहुत ही बेक सा लैंग्वेज मैंने यूज किया है, बट in some sense this is like a casual way of writing the procedure. तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट मैं ये व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, ये लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये जो पिक है,
You try to follow this algorithm to find out क्या आपका ये टेक्निक काम कर रहा है हर इनपुट पे. So stack का एक यूज है to find out or I should say to match the right with the left parenthesis. और ये सिर्फ parenthesis नहीं है, ये कोड के ब्रेसेस पे भी काम कर सकता है. ये आपके किसी और स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई और डिलिमीटर है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं. ओके, नाउ जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ, प्लीज गो एंड फाइंड आउट सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. जस्ट गूगल में लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक एंड जस्ट गिव मी 5 to 6 more एप्लीकेशन जो मैंने बताया उसके अलावा. ये देखिए ऐसे, जस्ट राइट डाउन दिस, गूगल दिस टर्म एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. Okay, please attend your roll call. Aditya Thakur. Present, sir. Adiba. Present, sir. Aditi. Aditya Raj. Alpana. Present, sir. Present, sir. Aditya Raj. Yeah, 4, 5. Aniket. Present, sir. Anjali. Anurup. Present, sir. Archit. Present, sir. Asma. Present, sir. Ayush. Bhumika. Chaitanya. Deven. Present, sir. Disha. Harsh. Present, sir. Harsh Netam. 17. Harsh Netam. 18 Hinakshi. 19 Homesh. Present, sir. 20 Johnson. Present, sir. 21 Kabir. 22 Kiteshwar. Present, sir. 23 Khushi. Present, sir. 24 Kiran. Present, sir. 25 Krish. Present, sir. 26 Kunal. 27 Kunal. 28 Kunjal. Present, sir. 29 Lipakshi. 30 Mansi. 30 Mansi. Present, sir. 31 Naman. Present, sir. 32 Paragi. Present, sir. 33 Parth. Present, sir. 34 Pranjal. Present, sir. 35 Pratik. Present, sir. 36 Priyal. Present, sir. 37 Priyesh. 38 Raghav. Present, sir. 39 Sai Rohit. Present, sir. 40 Ritesh. 41 Roman. 42 Rashi. Present, sir. 43 Saloni. 44 Samiksha. Present, sir. 45 Sanskriti. Present, sir. 46 Satyam. Present, sir. 47 Saurabh. 48 Saurabh. 49 Satakshi. 50 Shruti. Present. 51 Shubham. 53 Shubham Kumar Devangan. 54 okay 54 Shubhankar Tiwari. 55 Somesh. 56 Soumya. 57 Tushar. 58 Twinkle. 59 Vikas. 60 Vineet. Yes, sir. 61 Vipul. 62 Vivek. Present, sir. 63 Yashi. Present, sir. 64 Yoshi. Present, sir. सेक्शन एफ का आपसे ले ओके सेक्शन एफ मैं आप लोग का अटेंडेंस मैडम से ले लूंगा. आपकी मैथमेटिक्स की प्रोफेसर वेट कर रही है. तो सेक्शन एफ आई विल टेक द अटेंडेंस फ्रॉम द मैथमेटिक्स क्लास एंड थैंक यू.